Now we are moving towards the prefixes. I have told you that so many students are confused in the prefixes. So prefix is not a unit. Prefix tells how much quantity is available. Prefix is always used with the units. So we start from the basic. We start from 10 power 0. The 10 power 0, anything power 0 is equal to 1 and it is called a base. Now we will move one power in positive and other power in negative. 10 power 0, we moving then 10 power 1. 10 power 1 is called deca. 10 power, the prefix used for 10 power 1 or for 10 is called deca. Let's suppose if a current flows from certain circuit is 10 ampere, we may say that 1 deca ampere current flows from that circuit. Deca, that is 10 power 1. If the quantity is 10 power minus 1, then we use prefix for such quantity is deci. Deca is for positive and deci is for negative. Negative means power of 10 is negative. 10 power minus 1, it means this is equal to 1 over 10 power 1 or it is equal to 0.1. 10 power 2 or 100, prefix used for this quantity is hecto and symbol is H capital. If 100 ampere current flows from circuit, we may say 1 hectoampere current flows from this circuit, or we may say 10 deca ampere current flows from, because 10 deca is equal to 1 hecto. 10 deca plus the value of deca is always equal to 10. 10 into 10 is equal to 100. If the quantity is 10 power minus 2, then the prefix used for this quantity is centi. If the quantity is 10 power 3 or 1000, prefix used for this quantity is kilo. You may see from this figure. If the quantity is 10 power minus 3 or it is equal to 1 over 10 power 3 or 1 over 1000, then prefix used for this quantity is milli. If the quantity is 10 power 6 or 1 and place 60, then such a huge quantity is termed by a prefix mega and it is abbreviated by capital M. If a quantity contains a value 10 power minus 6, then the prefix used for this is micro, represented by a symbol mu. If a quantity contains a value of 10 power 9, then the prefix used for this is giga. And if it contains a negative power of 9, I mean 10 power minus 9, then prefix used for 10 power minus 9 is nano. If a quantity contains a power of 12, 10 power 12, then a prefix used for this is tera. And if a quantity contains 10 power minus 12, then the prefix used for this quantity is 10 power minus 12. Then the prefix used for 10 power minus 12 is pico. If a quantity contains 10 power 15, if a quantity contains 10 power 15, prefix used for this quantity 10 power 15 is peta. And if it contains a negative power 15, if the quantity is 10 power minus 15, then the prefix used for 10 power minus 15 is femto. If a quantity contains the power 18, 10 power 18, then such a prefix used for 10 power 18 is exa. So you may remember these prefixes from the reciprocal of one to another. The reciprocal of deca is deci, reciprocal of hecto is centi, reciprocal of kilo is milli, reciprocal of mega is micro, reciprocal of mega is micro, reciprocal of nano is tera, the reciprocal of pico, reciprocal of nano is giga, and reciprocal of pico is tera, and reciprocal of peta is femto, and reciprocal of exa is atto. Exa is positive and atto 10 power minus 18.
This is our chapter number 3, Ohm's law. Very simple law we are using from intermediate. This law states that voltage is directly proportional to the current if resistance is constant. Voltage will increase. If we increase the voltage, current will also increase. If we decrease the voltage, current will also decrease if the resistance is constant. You may say from first equation V is equal to IR. If R is constant, then V is directly proportional to the I. This law also states that current is inversely proportional to the resistance. See the second equation, I is equal to V over R. If voltage is constant, then current is inversely proportional to the resistance. There are three different forms of Ohm law. V is equal to IR, I is equal to V over R, and R is equal to VI. If you are using it for finding the voltage, you will use the first form. If you are using it for finding the current, you will use its second form. If you are going to use it for finding the unknown resistance, you will use the third equation. As Ohm law says that voltage is directly proportional to the current if resistance is constant. जैसा कि हमने लेब नंबर 1 में भी आपने देखा था कि हमने 330 किलो ओम का रेजिस्टर लगा के उसके करस्पेंडिंग जितनी जितनी वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज को बढ़ा रहा था तो आपने देखा था करंट भी इंक्रीज होता जा रहा था। बट ये भी पॉसिबल है, आप देखेंगे कि इन दो टर्म्स को देख लीजिए, हाई वोल्टेज बट लो करंट एंड लो वोल्टेज बट हाई करंट। हम क्या करेंगे, ओम लॉ को भी वैलिड रखते हुए इन दोनों टर्म्स को प्रूव करेंगे। ओम लॉ तो कहता है वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ेगा। लेकिन हम कहते हैं कि हम ओम लॉ को भी क्या करेंगे, गलत नहीं कहेंगे, लेकिन हम इन टर्म्स को करेक्ट प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास वोल्टेज हाई हो और करंट लो हो, या हमारे पास लो वोल्टेज हो और हाई करंट हो, ये कैसे पॉसिबल है। Come on, the last point I is equal to V over R. This is again Ohm law. आप देखिए हमने वोल्टेज की वैल्यू ऊपर रखी है 1000 वोल्ट, नीचे हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी हुई है 1 मेगा ओम। तो अगर आप क्या करें, रेजिस्टेंस if we keep too much high value for resistance, then this statement will prove high voltage and low current. It means this is a possible that we will obtain high voltage and low current. You will see that we are using the Ohm's law. As Ohm law says, voltage is directly proportional to the current. We are using the Ohm law, but we are going to prove that this statement is also correct. In whole scenario, the resistance plays the main part. You will see resistance plays the main part. You will see in first equation that if we place 1000 volt and we place the value of resistance is 1 mega ohm, you will find the value of current is 0.001 ampere. Compare the voltage with current. Voltage is too much high and current is low. Voltage is 1000 volt, current is 0.001 ampere. The whole main vital role is played by resistance. Come to the second example. I is equal to V over R, same equation, we are using the Ohm law. We say that Ohm law is a valid, Ohm law is a true. We have also proved in our labs. If we put the value of voltage is 6 volt and we keep the value of resistance low, that is 0.01 ohm. Compare the value of voltage with the value of a current. Voltage is 6 volt, current is 600 ampere. Again, in whole scenario, the resistance plays a main vital role. अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत ज़्यादा रखेंगे तो आपके पास ये स्टेटमेंट होगी हाई वोल्टेज और लो करंट मिलेगा। अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत छोटा रखेंगे तो आपके पास क्या होगा, लो वोल्टेज मिलेगा बट करंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। Practical units, as we have defined in Ohm law, three quantities: voltage, current and resistance. The unit of voltage is volt. How you will say there's 1 volt? How you will define a 1 volt? The voltage will be 1 volt. Voltage will be a 1 volt if 1 ampere current flows from a circuit having a resistance of 1 ohm. अगर किसी भी सर्किट में से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो और उस सर्किट की रेजिस्टेंस 1 ओम हो,
तो वहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा होगा वो वोल्टेज 1 वोल्ट होगा. Current will be 1 ampere if 1 volt is applied across a resistor having a resistance 1 ohm. करंट आपका 1 एम्पियर कब होगा? करंट 1 एम्पियर तब होगा जब आपने किसी रजिस्टर को 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया हुआ है और उस रजिस्टर की वैल्यू क्या है? 1 ओम है. तो उसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट भी 1 एम्पियर होगा. रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू 1 ओम रजिस्टर हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. अगर हमारे पास हमने एक अननोन रजिस्टर लगाया है, हम कहते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, और उसमें उस रजिस्टर को हमने 1 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स दिया है और उसी रजिस्टर को हमने 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उस रजिस्टर की वैल्यू जो है वो 1 ओम है. Then we are going to discuss the two important terms, linear resistance and non-linear resistance. If voltage is changing directly proportional to the current, if we increase the voltage, current is also increases, and if we decrease the voltage, current also decreases, but there is no effect on the resistance, then such a resistance is known as a linear resistance. ऐसी resistance linear resistance कहलाती है जिसमें आप voltage और करंट का आपस में कोई रिलेशन हो लेकिन रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो रेजिस्टेंस आपकी लीनियर रेजिस्टेंस कहलाती है. नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, वोल्टेज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द करंट और वोल्टेज डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द करंट, आल्सो चेंजेस द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस. अगर आप क्या करते हैं, वोल्टेज को चेंज करते हैं, करंट भी चेंज होता है, लेकिन साथ ही साथ आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होती है, तो इस तरह की रेजिस्टेंस हमारे पास कहलाती हैं नॉन लीनियर रेजिस्टेंस. लीनियर रेजिस्टर के एग्जांपल हमारे पास कलर कोडेड रेजिस्टर है, जबकि नॉन लीनियर रेजिस्टेंस जो है उसकी एग्जांपल आपके पास जो है दैट इज़ हमारे पास जो है टंगस्टन फिलामेंट बल्ब. पावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म in the world of the electronic. Power is basically the product of voltage and current is called power. We have three main formulas for the power. As I have told you previous that power is a product of voltage and current. This is called P is equal to VI. Second formula of power, P is equal to V into V over R, or P is equal to V square over R, using I is equal to V over R. See this first equation, P is equal to VI. We place V as it is and we use the value of I, or we use the expression of I from the Ohm law. From Ohm law, I is equal to V over R. We place V as it is and we place the expression of I. V into expression of I is V over R. Then it will be V into V over R or V square over R. The third formula is I into R, or I square into R. Again, see the first equation, P is equal to VI. First of all, we have placed V as it is, and we have put the value of expression of I. Now I will remain same, and we will put the expression for V. From Ohm law, we know that V is equal to IR. Place I as it is and then put the expression for V is equal to IR, put the expression of V, that is I into R. It will become I into R or I square R. Unit of power is watt. It means if you multiply the ampere with volt, you will get a watt. Because the power is a product of voltage and current, when you multiply the unit of voltage and current, you will get a unit of power. That is watt. Horsepower is also a biggest unit of the power. Horsepower or HP is also a unit of power, but it is the biggest unit. You may say from the second last point that 1 HP or 1 horsepower is equal to 746 watt. When you will combine 746 watt, it will becomes equal to the 1 horsepower, and same expression is also equal to 550 foot-pound per second. Last point is very important point, that kilowatt is a multiple unit of power. Please focus on this point.
kilowatt. Watt and prefix uses kilo, means 1000 watt. Means 1000 watt is the unit of power. As a watt is a unit of power, so kilowatt is also a unit of power. But kilowatt hour, you will see kilowatt is same power but multiply by hour. Hour is a unit of time. When power is multiplied by time, then it gives the unit of energy. It means kilowatt hour is not a unit of power, but kilowatt hour is a unit of energy. See example 3.10. I'll read it. Assuming that cost of electricity is 6 Ghana KD per kilowatt hour. This symbol is basically a Ghana KD symbol. This is the currency of Ghana country. Assuming that cost of electricity is 6 Ghana KD per kilowatt hour, आप सपोज़ करें कि एक यूनिट की कास्ट जो है वो आपके पास 6 गाना केडी है. किलोवाट आवर इज़ बेसिकली अ सिंगल यूनिट. जब आप कहते हैं कि हमारे पास कितने यूनिट आए हैं, इट मीन्स कि आप कहते हैं हमारे पास कितने किलोवाट आवर्स आए हैं, कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं. इसका मतलब है आपने कितने किलोवाट आवर्स कंज्यूम किए हैं. क्योंकि हमारे पास घरों में जो बिल आता है वो ना करंट का आता है, ना आपके पास वोल्टेज का आता है, ना आपके पास पावर का आता है, बल्कि आपके घरों में जो बिल आता है वो एनर्जी का ही आता है. जो आपके पास यूनिट लिखे हुए होते हैं, दैट इज़ किलोवाट आवर. हाउ मच विल इट कास्ट टू लाइट 100 वाट बल्ब फॉर 30 डेज. आपको उसने एक यूनिट की कास्ट बता दिया, दैट इज़ 6 गाना केडी. हाउ मच विल इट कास्ट, तो कितनी कीमत लगेगी. एक 100 वाट का बल्ब है, उसको हम 30 दिन के लिए ऑपरेट करवा रहे हैं, तो बताइएगा कि उस बल्ब का टोटल बिल कितना आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द यूनिट ऑफ कास्ट. दिस इज 6 गाना केडी पर किलोवाट आवर. फोकस ऑन दिस पॉइंट, किलोवाट आवर. इट मीन्स दैट यूनिट ऑफ पावर मस्ट ऑलवेज बी इन किलोवाट, and the unit of time must always be in hours. As we have given 30 days, it means we have to convert it into days, because unit is given in the day, in the hours. We have given the days and we have to convert it into the hours, because unit is given in hours. Power will always be converted into kilowatt and time is always converted into hours. First of all, we will convert 30 days into hours. As we know that there are 24 hours in a day. So how many hours will be in 30 days? Multiply 30 by 24. You will get the hours in a 1 month or in a 30 days. You will see that there are 720. When you will multiply 24 by 30, you will get 720 hours in 30 days. We have converted time into hours. Now you have to see the power. Cost is given in kilowatt hour. It means time must be in hour and power must be in kilowatt. We have converted time into hour. Now we have to convert the power into kilowatt. We have given 100 watt. We have to convert it into kilo. When we will convert it into kilo, we have to divide it by 1000. 100 divided by 1000 equal to 0.1 kilowatt. We have converted power into kilowatt. We have converted time into hour. Multiply both. When you multiply 0.1 by 720, you will get 72 kilowatt hour. 72 किलोवाट आवर का क्या मतलब है. 72 किलोवाट आवर का मतलब है कि इतने यूनिट्स आप इस बल्ब ने कंज्यूम कर लिए हैं. नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द बिल. यू आर गोइंग टू फाइंड आउट the price. You will see that I have told you in a class 1 Ghana KD is equal to 1 divided by $100. एक गाना केडी जो है वो 1 डिवाइडेड बाई $100 के होता है, यानी $1 का 100वां हिस्सा है. तो 6 गाना केडी किसके इक्वल होगा. 6 गाना केडी विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई $100. You will get $0.06. We have find the total units consumed by this 100 watt bulb are 72. Multiply by the cost of single unit. Cost of single unit is 6 Ghana KD or $0.06. When you will multiply 72 by 0.06, you will get $4.32. It means $4.32 will be consumed by this bulb for 1 month.
After completing the chapter number 3, we have jumped towards the chapter number 27. The name of chapter number 27 is PN junction diode and its application. Before starting to the PN junction diode, I will revise the semiconductor. Semiconductor means those material whose properties lies intermediate between a conductor and insulator. Group 4 element is known as a semiconductor. जो हमारे पास ग्रुप 4 के एलिमेंट होते हैं वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं. वो सेमीकंडक्टर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके पास 50% चांसेस होता है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, लूज़ करें या गेन करें, इसलिए वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं. Semiconductors are divided into two main types. One is known as a pure semiconductor, is known as intrinsic semiconductor. एक सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्योर होते हैं. प्योर होने का यह मतलब है कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है उसने किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है. अगर सिलिकॉन है तो वो सिलिकॉन ही है, अगर जर्मीनियम है तो वो जर्मीनियम ही है, उसी ने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाई हुई. क्योंकि बॉन्ड तो बनाना है सेमीकंडक्टर ने. सेमीकंडक्टर के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल नहीं है, उसको स्टेबल होना है. स्टेबल होने के लिए वो बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अगर उसने बॉन्ड नहीं बनाया है तो वो प्योर फॉर्म में है. जब प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर होगा तो उस सेमीकंडक्टर को कहेंगे कि ये हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है. और जब हम किसी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, कीप इन माइंड कि इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई कचरा वगैरह डाल दें. इम्प्योरिटी का मतलब बॉन्डिंग. जब वो सेमीकंडक्टर किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, इट मीन्स कि हम जब किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा उसने अपने अंदर इम्प्योरिटी डाल दी है, किसी दूसरे एटम को अपने अंदर घुसा दिया है, किसी के साथ उसकी शेयरिंग हो गई है. अब वो प्योर नहीं रहा, अब वो इम्प्योर हो गया है. तो जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है वो सेमीकंडक्टर कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. प्योर इज़ इंट्रिंसिक, इम्प्योर इज़ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एंड द प्रोसेस ऑफ एडिंग सच इम्प्योरिटीज़ इज़ नोन एज डोपिंग. ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कन्वर्ट करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बाय एडिंग इम्प्योरिटीज़, सच अ प्रोसेस इज़ नोन एज डोपिंग. See the last point, boron, aluminium, gallium and indium are group 3 elements. बोरान, अल्यूमिनियम और गैलियम जो हैं ये हमारे पास ग्रुप 3 के हैं और फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं. तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर ग्रुप 4 से बिलोंग करता है उसके साथ या तो 3rd ग्रुप के एलिमेंट अपने साथ बॉन्ड बना लेते हैं या 5th ग्रुप के साथ. जब आपके पास सेमीकंडक्टर के साथ ग्रुप 3 का एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा? देखिए, सेमीकंडक्टर के वैलेंस शेल में हैं 4 इलेक्ट्रॉन. ग्रुप 3 होगा. मैं ऑलरेडी बताया था कि ग्रुप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. अगर आपके पास ग्रुप 3 है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन. जब ये शेयर करेंगे तो स्टिल जो है सेमीकंडक्टर इज़ नॉट स्टेबल, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी. अब क्या है, ग्रुप 3 का एलिमेंट उससे 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन पहले की बनस्बत अब वो सेमीकंडक्टर कुछ स्टेबल हो गया है. तो अब क्या होगा? अब 1 इलेक्ट्रॉन की मज़ीद उसमें गुंजाइश है, 1 इलेक्ट्रॉन उसको मज़ीद चाहिए. देयर इज़ अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सच वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ टर्म्ड एज अ होल. होल इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव. होल जो है, होल को हम कंसीडर करते हैं, बिहेव करता है लाइक अ पॉजिटिव चार्ज. होल कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, होल कोई चीज़ ही नहीं है. होल एक वैकेंसी है, जस्ट एक वैकेंट स्पेस है. मैंने जैसे बताया था जो चेयर है ये एक वैकेंट स्पेस है कि आए बंदा मेरे ऊपर बैठ जाए. सेम होल क्या है? एक वैकेंट स्पेस है. किसके लिए वैकेंट स्पेस है? इलेक्ट्रॉन के लिए, कि इलेक्ट्रॉन आए मेरे पास बैठ जाए. जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाता है, इलेक्ट्रॉन को फेवर करता है, इलेक्ट्रॉन को ऑफर करता है, तो हम कहते हैं वाकई इस पर पॉजिटिव चार्ज होगी, क्योंकि सिर्फ अपोजिट चार्जेस ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं. अगर होल पे नेगेटिव चार्ज होती है तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ना बुलाता बल्कि इलेक्ट्रॉन को धकेल देता, दूर भगा देता, क्योंकि अपोजिट चार्ज सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करती हैं एक दूसरे को. तो अब क्या हो गया? अब जब ग्रुप 3 का सेमीकंडक्टर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास क्या होगी? एक वैकेंसी बन जाएगी. इसी तरह जब मिलियंस आपस में बॉन्ड, सेमीकंडक्टर मिलियंस ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो वहाँ पर मिलियंस होल्स क्रिएट होंगे, मिलियन वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी. इस नतीजे में जो एक सेमीकंडक्टर मिलेगा उसमें बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव चार्जेस का मजमूआ नज़र आएगा. तो हम कहेंगे कि ये जो सेमीकंडक्टर है ये सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक तो है, लेकिन एक्सट्रिंसिक के भी मज़ीद टाइप्स होते हैं. दैट इज़ पी टाइप एंड एन टाइप. पी का मतलब पॉजिटिव टाइप, एन का मतलब नेगेटिव टाइप. जब ग्रुप 3
हमारे पास सेमीकंडक्टर के साथ बॉन्ड बनाए तो देखें वहाँ पर हमारे पास एक वैकेंसी, पॉजिटिव चार्ज और होल क्रिएट हो रहा है जो पॉजिटिव है। तो इसलिए ऐसे सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं कि ये पी टाइप का या पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर है। और जो हमारे पास ग्रुप 3 के एलिमेंट उसमें एज ए इम्प्योरिटी तौर पे ऐड किया है तो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स कहलाते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़। क्यों ट्राइवेलेंट? क्योंकि ये ग्रुप 3 के हैं और इन्होंने एज इम्प्योरिटी तौर ऐड हुए हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तो ये कहलाते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़। उसके बाद अब अगर क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर जो कि ग्रुप 4 है, ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। जब वो किसी ग्रुप 5 के साथ बॉन्ड बनाएगा, ग्रुप 5 मीन्स कि उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, देयर विल बी एक्सीस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जब एक सेमीकंडक्टर एक 5th ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है, इट विल क्रिएट 1 इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास क्या होगा, मिलियन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, मिलियन ऑफ द सेमीकंडक्टर मिलियन ऑफ द ग्रुप 5 के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो वहाँ पर मिलियन ऑफ द नेगेटिव चार्जेस आपको नज़र आएंगे। यानी उस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको हर जगह क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस ही नज़र आ रहे होंगे। इसके नतीजे में हम कहते हैं कि जब ग्रुप 5 हमारे पास सेमीकंडक्टर के साथ बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पर रिजल्टेंट जो मटेरियल क्रिएट हो जाता है या रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर मिलता है वो एन टाइप का या नेगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ मैंने मेंशन की हुई हैं लेकिन इनको मैंने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। ये सुन लीजिएगा, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट सुन लीजिए। ट्राइवेलेंट तो ग्रुप 3 की होती हैं, पेंटावेलेंट, पेंटा का मतलब 5 होता है। ग्रुप 5 के एलिमेंट्स जब प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड होंगे तो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स को हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ कहेंगे। लास्ट पॉइंट में मैंने मेंशन भी किया ट्राइवेलेंट कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं, जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं। इसके साथ साथ आपने 2 टर्म्स और भी सुनेंगे, वन इज़ एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ एंड सेकंड वन इज़ डोनर इम्प्योरिटीज़। एक्सेप्टर और डोनर इम्प्योरिटीज़ भी इन्हीं का नाम है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट को ही कहते हैं। जो हमारे पास ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ है इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ भी कहते हैं। क्यों एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं? देखिए, जब ग्रुप 3 का बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एक खाली जगह रह जाती है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। तो हम कहते हैं कि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद आ सकता है, इस बॉन्ड में एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो सकता है। इसीलिए ग्रुप जो 3 है जिसको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ भी कहते हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के मोड में होती हैं। और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को डोनर इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। क्यों डोनर कहते हैं? क्योंकि जब पेंटावेलेंट बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस में बच जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। इसीलिए ग्रुप 5 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि वो क्या हैं, डोनर इम्प्योरिटीज़ हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पी-एन जंक्शन डायोड। We have created a p-type material, we have created an n-type material, now we are going to join them. When we will join a p-type material with the n-type material, what will happen? The meeting point of p-type material and n-type material is called junction. आपने सुना होगा जिस तरह होता है हैदराबाद जंक्शन, लाडी जंक्शन, तो जंक्शन का ये मतलब होता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स आकर आपस में मिलें तो वहाँ पर क्या बन जाता है, जो एक उनकी मीटिंग पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है या कॉमन लाइन है, वो जंक्शन कहलाती है। अब लेफ़्ट साइड पे फिगर ए में चेक कीजिएगा कि एरो के बीच में जो लाइन नज़र आ रही है ये लाइन कहलाती है, जंक्शन लाइन कहलाती है। ठीक, इससे पहले हम एक थोड़ी सी और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपने देखा था पी टाइप और एन टाइप बनाया था तो पी टाइप में आपको बहुत ज़्यादा क्या दिखाई दे रहे थे, पॉजिटिव चार्जेस दिखाई दे रही थी, और एन टाइप में बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव चार्जेस दिखाई दे रही थी। तो हमारे पास सेमीकंडक्टर में 2 टाइप्स के कैरियर होते हैं। एक कैरियर होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर दोज कैरियर्स व्हिच आर इन मेजॉरिटी, व्हिच आर इन ह्यूज अमाउंट, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर व्हिच आर इन माइनॉरिटी। अगर मैं आपको कहूँ हमारे पास एक स्टेट्स में जस्ट 2 ही कौमें हैं, एक मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स, तो मैं एक स्टेट का एक पार्ट उठा के कहता हूँ इसमें हमारे पास जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, देन आई विल आस्क कि उस स्टेट में हमारे पास माइनॉरिटी किसकी होगी, यू विल रिप्लाई कि वहाँ पर जो माइनॉरिटी होगी वो नॉन मुस्लिम्स की होगी। एंड सेम मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास स्टेट है, वहाँ पर जो है मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स की है, तो वहाँ पर माइनॉरिटी किसकी होगी, आप कहेंगे मुस्लिम्स की ही होगी। सेम हमारे पास जो पी टाइप मटेरियल होता है, आपको पता है उसमें जो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं या पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो वहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज किसकी होगी,
The answer is electron or negative charge. और n type में majority charge carriers are electron, then minority charge carrier will be holes or positive charge. Okay, majority charge carrier and minority charge carrier is clear to you. When we combine, they form a junction between p and n type material. तो अब क्या होगा कि p टाइप में होल्स हैं, n टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं. बोथ चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. होल इलेक्ट्रॉन को p साइड से होल n साइड वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और n साइड वाले इलेक्ट्रॉन p साइड वाले होल को अट्रैक्ट करेंगे. रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, इन दोनों की आपस में ट्रांसफरेंस शुरू हो जाएगी. होल मूव करके n साइड पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करके p साइड पे चला जाएगा. तो देखें अब क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस हो रही है. p साइड से होल जा रहे हैं, n साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. द मूवमेंट ऑफ चार्ज इज़ नोन एज अ करंट और फ्लो ऑफ मूवमेंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट. तो देखिएगा अब ये डायोड बना हुआ है, लेकिन इसके साथ हमने बैटरी भी नहीं कनेक्ट की हुई, फिर भी करंट फ्लो हो रहा है. तो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज़ देयर एनी करंट फ्लोज फ्रॉम अ डायोड अंडर नो बायस कंडीशन. वी विल डिफाइन अ बायस इन नेक्स्ट स्लाइड. द आंसर इज़ येस. करंट यानी डायोड को जब बाइसिंग ना की जाए, जब बैटरी ना कनेक्ट की जाए, फिर भी उसमें से करंट फ्लो करता है, लेकिन वो करंट कहलाता है मोमेंट्री करंट. यानी वो एक मोमेंट के लिए पैदा हुआ था और एक मोमेंट में ही ख़त्म हो गया था, तो वो करंट कहलाता है हमारे पास मोमेंट्री करंट. उसके बाद क्या होगा, जैसे इनकी ट्रांसफर शुरू हो जाएगी तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एन साइड पे ज़्यादा होल जमा हो जाएंगे और पी साइड पे ज़्यादा क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे. अब जब मज़ीद होल आएंगे एन साइड पे, तो एन साइड पे जो पहले, अब पी साइड से अगर मज़ीद होल एन साइड पे मूव होना शुरू हो जाएंगे, तो देखें एन साइड पे ऑलरेडी होल आ चुके थे. जो पहले आ चुके थे वो होल क्या करेंगे, अब मज़ीद होल को रिपेल करेंगे. और पी टाइप पे जो इलेक्ट्रॉन पहले पहुंच चुके थे, अब जो मज़ीद इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको यहाँ पर नहीं आने देंगे. तो अब क्या होगी, इन दोनों की आपस में ट्रांसफरिंग स्टॉप हो गई. ये दोनों का एक दूसरे की तरफ सफ़र जो था वो रुक गया. यहाँ पर अब क्या होगा, देयर विल बी नो ट्रांसफरेंस, देयर विल बी नो मूवमेंट, देयर विल बी नो करंट. इसीलिए मैंने कहा था दिस करंट इज़ बेसिकली अ मोमेंट्री करंट. ये करंट एक मोमेंट्री करंट है, ये जस्ट एक ही मोमेंट में पैदा हुआ था और एक ही मोमेंट में ख़त्म हो गया था. उसमें बाद में क्या होगा कि आप फिगर बी में देखिए, जब ये सीन हो जाएगा उसके बाद कोई भी चार्जेस कहीं पर भी मूव नहीं होगी और वहाँ पर एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा. वर्ड डिप्लीशन इज़ टेकन फ्रॉम द वर्ड डिप्लीट. डिप्लीट का मतलब वेयर देयर इज़ अ नो चार्जेस. अब वहाँ पर चार्ज नहीं. अब आप इस फिगर बी में जहाँ पर प्लस माइनस के साथ अंदर चार्जेस हैं, याद रखिएगा कि ये चार्जेस जो हैं ये कैरियर नहीं है, ये आयन है, ये स्टेशनरी आयन है, ये कहीं पर भी मूव नहीं होते, ये यहीं पर पड़े हुए हैं और मज़ीद चार्जेस को आगे और पीछे मूव नहीं होने दे रहे हैं. तो यहाँ पर अब देखिए एन पी और एन के बीच में एक जो है एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, जिसको मैंने वी बी से शो किया हुआ है. दिस पोटेंशियल इज़ बैरियर पोटेंशियल or contact potential. And always remember in Ohm law I have defined that voltage supports the current. voltage क्या करता है, करंट को सपोर्ट करता है. जितना वोल्टेज बढ़ा रहा था करंट बढ़ रहा था, लेकिन रिमेंबर कि here voltage is not supporting the current, here voltage is opposing the current. अब जब ये वोल्टेज क्रिएट हो गया तो करंट बंद हो गया. तो ये वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज सपोर्टिंग वोल्टेज नहीं, ये वोल्टेज अपोजिंग वोल्टेज है, ये करंट को अपोज करता है. अगर आप चाहते हैं मज़ीद फिगर बी जो फिगर ए की तरह हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से बैटरी के कनेक्शन लगाने पड़ेंगे. जब कनेक्शन लगाएं उस बैटरी को इतनी वोल्टेज दें कि इसके इंटरनल वोल्टेज को क्या कर दे, ब्रेक कर दे. यहाँ पर जो बैरियर आ गई है, एक रुकावट आ गई है, उसको तोड़ दे. तो उसके बाद यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. आप इसकी स्कीमेटिक डायग्राम भी देख सकते हैं और इसकी सिंबल भी देख सकते हैं. पी टाइप मीन्स पॉजिटिव टाइप. जो पॉजिटिव टाइप है उसको हम एनोड कहते हैं, तो एनोड के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है. एन साइड मीन्स नेगेटिव साइड. नेगेटिव साइड को कैथोड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर मैंने के या कैथोड लिख दिया है. पी एन जंक्शन बाइसिंग. अब हम जाते हैं पी एन जंक्शन की बाइसिंग की साइड. वर्ड बाइसिंग मीन्स व्हेन वी कनेक्ट अ डायोड विद अ बैटरी. जब भी हम क्या करें, डायोड को बैटरी के साथ कनेक्ट करें, तो वो हमेशा हमारे पास कहलाती है बाइसिंग. अब बाइसिंग होते हैं दो तरीके के. एक बाइसिंग होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक बाइसिंग होती है रिवर्स बाइसिंग. फॉरवर्ड बाइसिंग कब होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग तब होती है जब हम करते हैं ट्रू कनेक्शन. ट्रू कनेक्शन मीन्स कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी with the positive terminal of a diode. You will see from the figure 1 that positive terminal of a battery is connected with the P side and negative terminal of a battery is connected with the N side.
दिस कनेक्शन इज कॉल्ड ट्रू कनेक्शन। जब भी आप ट्रू कनेक्शन करें तो क्या होगा, आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है, अब देखिएगा पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड यानी पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एन साइड के साथ कनेक्टेड है। अब क्या होगा, पी साइड से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्जेस निकलना शुरू हो जाएंगी। जब ऊपर पी की तरफ जाएंगी तो फिर क्या होगा, वहाँ पर होल्स हैं, वहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, देन दे विल ट्राई टू रिपेल ईच अदर। अब कौन हावी हो जाएगा, जिसका पोटेंशियल, जिसके पास पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो बैटरी की जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज़ मोर पावरफुल एज़ कम्पेयर टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ डायोड। तो अब क्या हो जाएगा, ये हैवी हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा कि पॉजिटिव चार्ज जो बैटरी से निकल रही है, ये जो पी साइड पे पॉजिटिव चार्ज है उनको धकेलेगा, अंदर की तरफ धक्के देगा। तो फिर क्या होगा, दे विल ट्राई टू पुश टुवर्ड्स अ डिप्लीशन रीजन। वो क्या करेंगे, आगे डिप्लीशन रीजन को पुश करने की कोशिश करेंगे। सेम नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाए, नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एन साइड पे जाएंगे, बोथ आर सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। लेकिन किस पे रिपल्सिव फोर्स इफेक्ट कर जाएगी, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बैटरी का पोटेंशियल देखें ज़्यादा है, तो अब क्या हो जाएगा, बैटरी वाली जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो कामयाब हो जाएंगी, उनको धकेल के नेगेटिव चार्जेस पे जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको धकेल के जो डिप्लीशन रीजन अंदर बना हुआ है उनकी तरफ धक्के देंगी। तो अब देखें जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन बनी थी, वो डिप्लीशन रीजन अब दोनों तरफ से उसको धक्के आ रहे हैं, पॉजिटिव साइड से भी नेगेटिव साइड से भी। तो इट विल श्रिंक, इट विल बिकम अ नैरो। तो जब हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाती है। जब डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाती है तो अब इस फिगर में आइए, बिल्कुल फिगर एक ही तरह हो जाती है एंड अगेन करंट विल स्टार्ट ऑफ फ्लो। अब करंट जो है वो अगेन फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में दो काम होते हैं, डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाती है और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। कम टू फिगर नंबर बी, दैट इज़ रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में हम अनट्रू कनेक्शन करते हैं। It means we will connect the positive terminal of a diode with the negative terminal of battery, and we will connect the positive terminal of a battery with the negative terminal of a diode. रिजल्टेंट हमारे पास अंदर होगा क्या कि नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, पी साइड पे जाएंगे। अब क्या होगा, बोथ चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स किसकी तरह इफेक्टिव हो जाएगी, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, पोटेंशियल बैटरी का ज़्यादा है। तो बैटरी की नेगेटिव चार्ज क्या करेंगी, जो पी साइड पे पॉजिटिव चार्ज है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके लेकर आएंगी। ऊपर से जो होल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो ये आपके पास सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, उन सर्कल्स को अपनी तरफ मूव करेंगी। सारी की सारी चार्जेस क्या होंगी, बैटरी की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगी। जैसे चार्जेस बैटरी की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगी तो सेम उसकी नेबरिंग जो चार्जेस हैं वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी बैटरी की तरफ पे, और डिप्लीशन रीजन के साथ जो अटैच चार्जेस हैं वो भी बैटरी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो डिप्लीशन रीजन को अब ज़्यादा जगह मिलेगी, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करके डिप्लीशन रीजन इस साइड पर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। सेम आ जाइए, जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा, एन साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्जेस निकलेंगी, वो पॉजिटिव चार्जेस एन साइड पे जाएंगी, वो चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो अट्रैक्टिव फोर्स अब किस तरह पे इफेक्टिव हो जाएगी, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। पोटेंशियल बैटरी का ज़्यादा है तो अब क्या होगी, यहाँ की पॉजिटिव चार्ज जो है, बैटरी की पॉजिटिव चार्ज वो इफेक्टिव हो जाएगी, वो खुद इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जाएगी बल्कि इलेक्ट्रॉन को धक्के देकर अपनी तरफ लेकर आएंगी। तो अब क्या होगा, जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के सारे बैटरी की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे, सारे शिफ्ट होंगे और सबकी शफलिंग होगी। जो चले गए हैं उनकी जगह दूसरे ऑक्यूपाई करेंगे। तो जो डिप्लीशन रीजन के बिल्कुल 7 चार्जेस हैं वो क्या होंगी, आगे की तरफ शिफ्ट होगी। डिप्लीशन रीजन को एक फ्री स्पेस मिल जाएगा, डिप्लीशन रीजन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी नतीजे में हम कहते हैं कि जब भी आप रिवर्स बाइसिंग अप्लाई करते हैं तो डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है। जब डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है तो कोई करंट फ्लो नहीं होता, इसीलिए रिवर्स बाइसिंग में हमारे पास ज़ीरो करंट फ्लो कर रहा होता है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स लास्ट स्लाइड, दैट इज IV characteristics of PN junction diode. I stands for current and V stands for voltage. This is a relationship between a current and voltage in a diode. That how diode behave, that how the current and voltage of a diode behave with each other. You will see we have placed voltage on x-axis and current on y-axis. Why we place? I have told you many times that independent quantities are always taken on x-axis and dependent quantities are always
place on y-axis. Voltage is independent, voltage is in our hand, however we change. आप देखेंगे कि आपके पास जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव एक्सिस पे भी नज़र आएगा और नेगेटिव पे भी। पॉजिटिव एक्सिस का ये मतलब है कि वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में। नेगेटिव साइड का ये मतलब है कि आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव रिवर्स बाइसिंग में। तो देखिए, आप ब्लू लाइन पे फोकस कीजिए। ब्लू लाइन ही एक्चुअल ग्राफ है। तो ब्लू लाइन को देखिए, शुरू में अगर हम वोल्टेज को ज़ीरो कर रहे हैं तो करंट भी ज़ीरो है। फिर वोल्टेज वाला एक्सिस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, लेकिन ब्लू लाइन अगेन कुछ देर तक क्या हो रही है, बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल ज़ीरो पे जा रही है। क्यों ज़ीरो पे जा रही है? क्योंकि डायोड के अंदर एक बिल्ट इन पोटेंशियल होता है, एक बैरियर जो वहाँ बन गया था। जब तक आप उस बैरियर को नहीं तोड़ेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। उस बैरियर को तोड़ने के लिए आपको उस बैरियर से जितना बाहर से वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। अगर सिलिकॉन है तो उसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 है, तो आपको बैटरी से 0.7 से ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 0.7 तक तो बैरियर टूटेगा, उसके बाद जाके करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो इसीलिए बिल्कुल पहले ब्लू लाइन स्मूथ है, जब बैरियर टूट रहा है तो ऐसा ऐसा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है। और जिस पॉइंट पे वो वोल्टेज जिस पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है, उस वोल्टेज को कहते हैं, दिस वोल्टेज इज़ बेसिकली अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज। वो जो वोल्टेज है वो हमारे पास क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज? वो वाला वोल्टेज जिस पे डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट हो गया है, जिस पे डायोड में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। और ये करंट आगे जितना आप फिर क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, उसी हिसाब से करंट भी इंक्रीज़ होता हुआ चला जाएगा। नेगेटिव वोल्टेज की बात करें, यानी जब नेगेटिव वोल्टेज दें या रिवर्स बाइस करें, तो रिवर्स बाइसिंग में आपको पता है डिप्लीशन रीजन बढ़ती जाती है, चार्जेस ज़्यादा और ज़्यादा बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं और डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाती है, कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो देखिए, नेगेटिव साइड पे भी शुरू में लाइन जो है बिल्कुल ज़ीरो पे जा रही है, लेकिन फिर सडन आप देखेंगे सडनली फिर क्या हो रही है, लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस फिगर में दोबारा जाता हूँ। इस फिगर में क्या हो रहा है, नेगेटिव साइड वहाँ पी साइड के होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा और ज़्यादा क्या हो रहे हैं, होल्स उसकी तरफ जा रहे हैं, डिप्लीशन रीजन वाइडर होती जा रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, तो ज़्यादा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो डिप्लीशन रीजन को ज़्यादा और ज़्यादा स्पेस मिल रहा है और वो बहुत वाइडर होता जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा, अगर आपने रिवर्स बाइस में वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, पोटेंशियल और ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस को खींचे जा रहा है, तो डिप्लीशन रीजन आहिस्ता बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि जब व्हेन द साइज ऑफ डिप्लीशन रीजन बिकम्स इक्वल टू द साइज ऑफ द डिवाइस, जब सारा का सारा डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, डिवाइस के ऊपर आ जाएगा, यानी जितनी डिवाइस की साइज़ थी उतना डिप्लीशन रीजन आ गया। तो अब क्या हो गया, जब वहाँ पर जितना डिप्लीशन रीजन जो डिवाइस की साइज़ थी, अब वहाँ पर डिप्लीशन रीजन की वही साइज़ आ गई है, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं पंच थ्रो इफेक्ट। मैं दोबारा बता देता हूँ कि देखिए, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पी साइड से होल को अपनी तरफ खींच रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ज़्यादा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल बैटरी की तरफ आते जा रहे हैं, डिप्लीशन रीजन को ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, वो ज़्यादा स्पेस कवर करते जा रहा है। जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ज़्यादा होल और इलेक्ट्रॉन बैटरी की तरफ आते शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा स्पेस डिप्लीशन रीजन को मिलेगा। एक वक्त ऐसा होगा कि डिप्लीशन रीजन वाइड होता हुआ आके डिवाइस के ऊपर उसकी साइज़ जो है डिवाइस की साइज़ के इक्वल हो जाएगी। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं पंच थ्रो इफेक्ट। और वो वाला इफेक्ट, वो वाली वोल्टेज जिस पे पंच थ्रो इफेक्ट आया, यानी जो वोल्टेज हमने अप्लाई की, जिस पे डिप्लीशन रीजन की साइज़ जाके डिवाइस की साइज़ के इक्वल आई, वो वोल्टेज आपके पास कहलाती है ब्रेक डाउन वोल्टेज। और जब ब्रेक डाउन हो गया, डिवाइस ब्रेक डाउन होगी। डिवाइस ब्रेक डाउन का मतलब कि जब पंच थ्रो इफेक्ट आ गया, डिप्लीशन रीजन जो थी वो डिवाइस की साइज़ के इक्वल आ गई, तो उस टाइम पे देखिएगा कि रिवर्स में बहुत बेतहाशा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि पहले जो करंट को रोक रहा था वो डिप्लीशन रीजन थी, अब डिप्लीशन रीजन बिल्कुल डिवाइस के विड्थ के क्योर हो गया, यानी आप कह सकते हैं कि अब डिप्लीशन रीजन बिल्कुल वेनिश हो गया, डिप्लीशन रीजन अब डिलीट हो गया, अब डिप्लीशन रीजन चली गई है। तो जब डिप्लीशन रीजन चली गई है तो अब जो है चार्जेस को कोई नहीं रोक रहा, तो अब चार्जेस एक दूसरे की तरफ बहुत फास्टली मूव होना शुरू हो जाएंगी। जब बहुत फास्टली मूव होना शुरू हो जाएंगी, हम कहेंगे उसमें से बहुत बेतहाशा करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। जब बेतहाशा करंट फ्लो होगा तो वो ज़्यादा और ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा, हीटअप होता जाएगा और वो डिवाइस जल जाएगी। और वैसे भी पंच थ्रो इफेक्ट पे डायोड नहीं रहता, क्योंकि डायोड का जो
हमारे पास की होती है वो डिप्लीशन रीजन होती है, जिससे हम उसको ऑन ऑफ करवा रहे होते हैं, कंट्रोल करवा रहे होते हैं। पंच थ्रू इफेक्ट पे डिप्लीशन रीजन ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पर डायोड नहीं रहता। एक टाइम ऐसा आता है कि बेतहाशा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, वो डिवाइस हीटअप होकर जल जाती है। तो हम कहते हैं कि अब जब ये पॉइंट आ जाएगी जिस पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा करंट, ये जो ब्लू लाइन आपको नीचे दिखाई दे रही है, जब ये करंट बेतहाशा फिल हो जाएगा तो वो वोल्टेज जिस पे ये करंट आया वो वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। डिवाइस ब्रेकडाउन हो गई और हमारे पास डिवाइस अब जल गई है। तो ये सारा था हम जो प्रीवियसली पढ़ कर आए थे। अब आपने एक असाइनमेंट नंबर 3 है, इससे पहले हमने 2 क्विज़ और 2 असाइनमेंट कर चुके हैं और वो आपको चेक होकर वापस भी मिल गए थे। असाइनमेंट नंबर 3, राइट ऑल टाइप्स ऑफ डायोड। आपने सारे टाइप्स ऑफ डायोड, तो सारे टाइप्स ऑफ डायोड में कुछ कह रहे थे डायोड अप्रॉक्सीमेशन है, हाफ वेव या फुल वेव, तो ये डायोड के टाइप्स नहीं होते। डायोड के टाइप्स जैसे पीएन जंक्शन डायोड अभी पढ़ कर आए हैं, इसी तरह आपके पास सिग्नल डायोड होगा, वैक्टर डायोड होगा, शॉटकी डायोड होगा, जीना डायोड होगा। तो ये डायोड की टाइप्स हैं। आपने जस्ट एक एक डायोड के टाइप्स पे 4-5 लाइंस लिखनी है, उनका सिंबल लिखना है, मेन वर्किंग लिखनी है। ये अपने बाय हैंड सॉल्व करना है और उसके स्नैपशॉट लेके मुझे जीमेल पे भेजना है। मैंने अपनी जीमेल स्लाइड पे मेंशन की हुई है और ये स्लाइड भेज दिए हैं। लास्ट डेट असाइनमेंट की जो सबमिशन की दैट इज़ 15 जून 2020 और टाइम इज़ 4 PM। Thank you so much.